یہ جو بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا ذکر اذکار کر رہے ہیں یا دنیا میں اپنے آپ کو ان کے جیسا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دنیا کے لالچ میں، دنیا کے مال و زر کی لالچ میں، دنیا کی عزت پانے کی لالچ میں، یہ صوفیوں کا جو ادب احترام یا جو ان کا دنیا میں وقار ہے وہ پانے کے لیے وہ ان کے جیسا لباس حاصل کرتے ہیں، ان کے جیسا لباس پہن لیتے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں میں صوفی کہلواتے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ صوفیوں کا وہ علم ہوتا ہے، نہ صوفیوں جیسے اخلاق ہوتے ہیں، نہ صوفیوں جیسے کردار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے ان صوفیوں کا نام بھی خراب ہوتا ہے جو حقیقی معنیوں میں صوفی ہے۔ صرف نام لگانے سے کوئی صوفی نہیں ہوتا۔ صوفی وہ شخص ہے جس کو ہم آگے بیان میں سمجھیں گے کہ صوفیوں کا مقام کیسا ہوتا ہے۔ صرف دکھنے سے کئی لوگ آج صوفی نام لگا بھی لیتے ہیں، لیکن وہ اصل میں صوفی ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانے۔ لیکن ایسے متصوف جو مشابہ یعنی ان کی طرح دکھنے والے ہیں، وہ ان کے جو کامیابی ہے صوفیوں کی یا جو ان کا نام ہے لوگوں میں، اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی عبادتیں کرنا یا جو بھی ہے وہ ان کے دل میں محبت ہے دنیا کے مال کی۔ تو جتنے بھی ایسے لوگ ہوں گے اور جیسے آپ کا تعلق ایسے لوگوں سے ہوگا، اگر ملاقات ہوگی یا ملتے ہو اور آپ سمجھیں گے یہ صوفی ہے اور ان کا کردار اچھا نہ دکھے تو یہ نہ سمجھے کہ صوفیوں کا کردار ایسا ہوتا ہے۔ یہ ان کے جیسے دکھنے والے لوگ ہیں، یہ صوفی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک جماعت ہے صوفیوں میں کہ جن کا کردار دکھنے میں تو ان کے جیسا ہوتا ہے لیکن وہ اصل میں صوفی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ان کے جیسے دکھنے والے صوفی، یعنی صوفیوں کے جیسے اپنا بناوٹ پہناوا سب چیز کرنے والے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ مست صوف، یا پھر ان کے جیسے دکھنے والے مشابہ، ان کی مشابہت ان کی جیسی ہے۔ بہرحال دوسرے ہوتے ہیں متصوف۔ متصوف جو ہوتے ہیں وہ صوفیوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو صوفیوں کے مقام کو پانے کے لیے اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ یعنی یہ وہ ہے جو صوفیوں کے ساتھ میں رہ کے اور ان کی مریدی حاصل کر کے، یا جو مریدین سالک جو ہوتے ہیں، اس علم کے طلبگار جو ہوتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ متصوف۔ کہ جو یہ صوفیوں کے یعنی تصوف کے راستے کے راہی ہے، سلوک کے راہ کے راہی ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ متصوف کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ابھی راہی ہے، یہ صوفی بنے نہیں ہیں، ابھی یہ اس مقام کو پہنچے نہیں ہیں، ابھی انہوں نے وہ مقام پایا نہیں ہے۔ یہ ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا ظاہر صوفیوں کی مانند ہوتا ہے، باطن جو ہے وہ اس راہ پہ چل رہا ہوتا ہے، ابھی وہ منزل پہ پہنچا نہیں ہے، اس نے وہ مقام حاصل نہیں کیا ہے، لیکن یہ بڑی ایمانداری سے، اخلاق سے، کردار سے اور عاجز انکساری کے ساتھ ان صوفیوں کی صحبت میں رہ کے اللہ کے راستے کو، اس تک پہنچنے کے، اس کی ملاقات کے راستے کو طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جو اس راستے کو طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں متصوف۔ یعنی صوفیوں کے راستے کو اختیار کیا اور انہوں نے ان کی شاگردی یا ان کی مریدی حاصل کی اور پھر اس راستے پہ چلنا شروع کیا، لیکن وہ خالص دل سے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہی وہ مرید ہوتے ہیں یا شاگرد بنتے ہیں ان کے۔ تو صوفیوں کی صحبت میں رہ کے اللہ کے رسول تک پہنچنے کے لیے جو دن و رات ذکر اذکار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو یہ متصوف کہے جاتے ہیں اور یہ صوفیوں میں سے ایک جماعت ہے، لیکن یہ ابھی شاگردی میں ہے، سیکھنے والوں میں ہے، یہ صوفیوں کے مقام تک نہیں پہنچے ہیں۔ ہاں لیکن ان کی صحبت میں رہ کے یہ بھی صوفی بن جاتے ہیں۔ جتنے بھی بزرگوں کے آپ نام لو گے، یا آپ ہندوستان کے سب سے بڑے بزرگ جو ہم نام لیتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہو، تو آپ بھی جو ہے اس راہ کے سالک رہے ہیں، اس راہ پہ چلنے والے بنے ہیں اور آپ اس راہ کے راہی بنے، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مرید ہوئے، شاگرد ہوئے، اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل کر آپ نے بھی وہ مقام کو حاصل کیا۔ اسی طریقے سے تمام دیگر بڑے بھی سرکار عبد القادر جیلانی، غوث السمنانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے بھی مریدی حاصل کی، آپ بھی مرید ہوئے۔ آپ کے پیر و مرشد ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مریدی میں رہے، شاگردی میں رہے اور آپ نے وہ مقام کو حاصل کیا۔ نظام الاولیاء ہو، بابا فرید ہو، خواجہ قطب بختیار کاکی ہو، سبھی کے کوئی نہ کوئی پیر و مرشد ہے جو صوفی اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کا ہاتھ تھاما، ان کا دامن تھاما اور وہ وہاں تک پہنچے، کیونکہ بغیر وسیلے کے، بغیر ذریعے کے کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ علم حاصل کرنا یعنی یہ وہ علم نہیں ہے جو عام مدرسوں میں علم حاصل ہوتا ہے۔ صوفیوں کا علم جو ہوتا ہے وہ قلبی علم ہوتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا جو راز کی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی تک پہنچائی، اور نبی نے بھی، کیونکہ ان کے پاس بھی
असाफ़े सुफ़ा थे। असाफ़े सुफ़ा की बात अभी हम करेंगे कि असाफ़े सुफ़ा कौन कौन है, क्या है। लेकिन वो लोग यानी जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, जो सूफी अकराम की बात कर रहे हैं, तो सूफी अकराम का मकाम जो है बड़ा बुलंद है। उनको अल्लाह से बहराए रास्त वो बातिनी इल्म हासिल हो जाता है, क्योंकि वो करीब हो जाते हैं अल्लाह के नफिल इबादतों के ज़रिए से और जो फ़र्ज़ इबादतों के ज़रिए से सुन्नतों पर अमल करके वो उस मकाम को हासिल कर लेते हैं कि अब उनके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। उस मकाम तक पहुँचने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए बुजुर्गान दीन जो है उनको रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि कुरान शरीफ अल्लाह ने खुद भी फरमाया है, या अय्युहल लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। यानी अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालो, या अय्युहल लज़ीना आमनु वब्तगू, ये अल्लाह से डरो, या अय्युहल लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह से डरने का जैसा हुक्म है, या अय्युहल लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता, और अल्लाह की राह में अल्लाह तक पहुँचने के लिए, उसकी लगा के लिए, राह रास्त के लिए वसीला तलाश करो। जब वसीला मिल जाए फिर क्या करो, फिर तुम उसकी राह में जिहाद करो। जैसा जिहाद जो है वो जंग करने की बात नहीं हो रही है कि लोगों से जंग करना, यहाँ पर अपनी नफ्स से, क्योंकि जो भी बुजुर्ग है वो अपने शागिर्दों को, अपने मुरीदों को तस्किया नफ्स और तस्किया कल्ब सिखाएंगे, यानी कैसे वो नफ्स से जिहाद करें, और उसके बाद जैसे जो भी उनके पीरो मुर्शिद है वो जो रास्ता बताते हैं उस पर कैसे चलना है। ये तमाम हुक्म जो है वो किसी न किसी वसीले के ज़रिए से होगा। तो अल्लाह ने खुद फरमाया कि आप जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। यानी अगर तुमने अपने मुर्शिद की बात पे अमल किया, जो आपके उस्ताद है, आपके मुर्शिद है, उनकी बात पर अमल किया, तो फिर तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो, यानी अपने नफ्स के साथ जिहाद करो। और जब तुम नफ्स के साथ जिहाद करोगे तो फिर तुम फलाह पाओगे, यानी तुफ़्लिहून, यानी अल्लाह की तरफ से तुमको फलाह हासिल होगी। तो अल्लाह ने खुद हुक्म फरमाया है वसीले के लिए, और ये जो मत्सूफ है ये वसीला तलाश करते हैं, और ये किसी ना किसी सूफी बुजुर्ग के हाथों पे अपना हाथ देते हैं, बैत होते हैं, मुरीद होते हैं, और फिर उनके बताए हुए रास्ते चलते हैं और अमल करते हैं। फिर वो जितना भी सख्त रास्ता क्यों ना, सख्त से सख्त रास्ता इख्तियार करते हैं, मुजाहिदा करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, जो उनको तलकीन किया जाए, बताया जाए, उस पर वो अमल करते हैं। तो जो उस राह में दाखिल होते हैं और चलते हैं, तो राह के जो राही है, चलने वाले हैं, यानी उस मकाम को हासिल करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए जो सफ़र तय करते हैं, वो क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मत्सूफ। यानी दो चीज़ हमने समझ ली कि पहले तो जो है मत्सूफ है, यानी मुशाबा उनके जैसे दिखने वाले, लेकिन वो हकीकी में सूफी होते नहीं है। दूसरे होते हैं मत्सूफ, यानी इस राह के राही, जो अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी न किसी बुजुर्ग का दामन थामते हैं, हाथ थामते हैं, और वो फिर उस रास्ते पे चलते हैं। अब बात आई कि लोग सूफियों के पास क्यों जाते हैं, यानी सूफियों का मकाम ऐसा क्या है कि सूफी के पास जाके ही वो मकाम हासिल हो सकता है। क्या आज मदरसों में उलमा कराम नहीं है? क्या वो दीनी इल्म नहीं सिखा रहे हैं लोगों को? वो भी दीनी इल्म सिखा रहे हैं। वो उनको दुनियावी जो भी उनको नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के लिए जो इल्म की ज़रूरत है इबादत करने के लिए, या दीन की जो मालूमात है, वो सब भी तो आलिम दे ही रहे। फिर इन सूफियों की ज़रूरत क्या है, ये सूफी क्या देते हैं? तो यहाँ समझना है कि उलमाए दीन का काम है, वो उलमाए दीन बखूबी निभा रहे हैं। किस तरीके से? वो एक बच्चे को जो बेसिक दीन की ज़रूरत है, बुनियादी जो ज़रूरत है दीन की, वो सब सिखा देते हैं। यानी उनको कलमा पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ना सिखाते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ सिखाते हैं। ज़ाहिरी इल्म तमाम चीज़ उनको सिखाते हैं, जो शरीयत का इल्म है वो उन्होंने सिखा दिया, और वो बखूबी ये काम कर रहे हैं। अब इसके बाद में ये ज़ाहिरी इल्म के ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता है, सिर्फ उसके लिए बातिनी इल्म का भी होना ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, सिर्फ एक पहलू नहीं होता है। अब दो पहलू है तो उसमें से एक ज़ाहिरी है तो एक बातिनी भी है। तो उलमाए दीन के पास वो ज़ाहिरी इल्म बड़ी बखूबी, बड़े अच्छे अंदाज में है, और वो उसको लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाला, क्योंकि सूफियों के पास वो इल्म है जो आम लोगों के पास इल्म नहीं होता है। हाँ, बहुत बड़े बड़े आलिम हैं जिन्होंने ज़ाहिर इल्म भी सीखा, उसके बाद में वो किसी न किसी बुजुर्ग की सोहबत में रह के बहुत वो मकाम को, सूफी के मकाम को भी हासिल किया है। उसकी बड़ी मिसाल तो बड़े पीर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी भी है, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह भी है।
इन्होंने फिक़ह में बहुत इल्म हासिल किया, शरीयत के इल्म बहुत हासिल किए, उसके बाद अपने पीर व मुर्शिद के साथ रहकर उनसे भी उन्होंने तालीम हासिल की और बातिनी इल्म भी हासिल किया, तब वो उस मकाम को पहुंचे। यानी सिर्फ ज़ाहिरी इल्म से कुछ नहीं होता है, ज़ाहिरी इल्म के साथ साथ बातिनी इल्म का भी होना ज़रूरी है। तो सूफियों के पास लोग जाते हैं बातिनी इल्म सीखने के लिए, और बातिनी जो इल्म है उसका तज़किरा इल्म लदुन्नी जो कुरान शरीफ में है, और हमारा उस पर एक बयान भी है, हम इस बयान के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे ताकि आप इल्म लदुन्नी के बारे में भी अच्छे तरीके से समझ सकें। अब यहाँ हम लोग बात जिस वक्त कर रहे हैं इल्म की नहीं, सूफियों की किस्म की। बाद में सूफी कौन कौन थे उनके नाम भी आएंगे अगले बयानों में, वरना ये बहुत लंबा बयान हो जाएगा। अब यहाँ पे सूफी के लफ्ज के माने समझते हैं। ये अब दो चीज समझ में आ गई हम लोगों के कि भाई मस्तसूफ मुशाबा लोग कौन है और मतसूफ कौन है। तो दो लोगों की हमने किस्में सूफी में बता दी, तीन में से। अब एक बची है लास्ट सूफी, कि सूफी ये अल्फाज कैसे बना, सूफी कहते किसको है। तो सूफी जो है अल्फाज अस्साफ़े सूफा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिनकी तादाद 40 से 400 तक बताई जाती है, यानी उसमें 40 भी बताई जाती है और 400 भी बताई जाती है, लेकिन इसमें कुछ इख्तिलाफ है। तो 40 पे हम रहते हैं कि 40 तो कम से कम है ही, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इख्तिलाफ आते हैं कि भाई 400 थे या नहीं थे, लेकिन उस वक्त में अस्साफ़े सूफा जरूर थे। और अस्साफ़े सूफा कहते उसको थे लोग जो लोग मस्जिद नबवी के बाहर एक दरख्त के नीचे एक चबूतरा बना हुआ था, उस पर वो बैठे रहते थे फुकरा, और वो सूफ की यानी ऊन की बनी हुई गोदड़ियां ओढ़े हुए होते थे, इसीलिए उनको लोग अस्साफ़े सूफा के नाम से पुकारते थे कि ये अस्साफ़े सूफा है। और ऊन की बनी हुई सिर्फ एक गोदड़ी ओढ़ते थे, वो बड़े गरीब मिस्कीन और फुकरा हुआ करते थे। तो ऐसे जो लोग उस दौर में थे अस्साफ़े सूफा, उन्हीं के रास्ते पे चलने वालों को फिर सूफी कहा गया, और लफ्ज़ सूफी उन्हीं से अस्साफ़े सूफा से बना। लेकिन सूफी के बहुत सारे मानी लिए भी जाते हैं, जैसे लुग़वी मानी में पहले तो ये बता दिया कि भाई सूफ से बना हुआ जो गोदड़ी ओढ़ते थे इसलिए उनको अस्साफ़े सूफा कहा गया, और वो फिर बाद में सूफी कहलाए। लेकिन सूफी के लफ्ज़ के मानी भी क्या है कि लफ्ज़ सूफी जो है वो सफाई से बना। सफाई यानी कल्ब की सफाई, ज़ाहिरी तहारत जैसी ज़रूरी है, ज़ाहिरी सफाई जैसी ज़रूरी है, पाकी ज़रूरी है, वैसी ही पाकी जो है कल्ब की भी ज़रूरी है, दिल की भी ज़रूरी है। तो जिसने अपने दिल को दुनियावी जितनी भी मतलब गलाजतें हैं, बुराई है, गलाजत किसको कहते हैं दुनियावी, सबसे पहले तो लोगों से हसद रखना, जलन रखना, तकब्बुर करना, और ऐसी तमाम झूठ फरेब यानी इस तमाम बुराइयां जो है उससे अपने दिल को पाक करना। और सबसे बड़ी नापाकी जो है वो है शिर्क। शिर्क जो है अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि सबसे बड़ी नापाकी, नजस, बुराई, गंदगी कुछ अगर है तो वो शिर्क है। तो अपने कल्ब को सबसे बड़ी गंदगी शिर्क से पाक कर देना। जब वो वैसे हो जाते हैं तो उनका कल्ब साफ हो जाता है, और वो जब उनका कल्ब साफ हो जाता है तो वैसों को क्या कहते हैं, सूफी कहते हैं। और ये बशरी सिफत से फानी हो जाते हैं, बशरियत से अपने फानी होते हैं, और ये अपने आप के अपने होने के गुमान को, अपने खुदी को इस कदर मिटा देते हैं कि ये इनको अपने होने का गुमान ही नहीं रहता है, और ये अल्लाह की ज़ात में बाकी हो जाते हैं। उसके जिक्र से, उसके फिक्र से उनका कल्ब, उनका जिस्म, उनकी रूह, हर चीज़ जो है वो जिक्र अल्लाह में एकदम हमेशा मशगूल रहती है। अब ऐसे फानी हो जाते हैं कि अल्लाह के जिक्र अस्कार में वो फना हो चुके हुए इस कदर रहते हैं। तो ऐसे लोगों का दिल इतना साफ और शफाक यानी आईने की तरह शफाक चमकदार हो जाता है। ऐसे लोगों को फिर क्या कहा जाता है, सूफी, कि जिनके दिल में कोई गलाजत, कोई भी गंदगी नहीं है, तो उनके दिल से नापाकी और गंदगी दूर हो जाती है और कल्ब साफ हो जाता है। तो ऐसे वो क्या कहते हैं, सूफी। अब सूफी की अहमियत अल्लाह की और रसूल की नज़र में हम समझेंगे, ये कुरान शरीफ से और कुछ वाक़ियों से, ताकि ये समझ में आए कि सूफियों का मकाम इतना बुलंद, इतना अहम क्यों है कि सूफियों के करीब रहने के लिए तो हमारे नबी को भी हुक्म हुआ कि उनसे दूर ना हो या उनको अपने से दूर ना करे, उनको दूर करने से उनको रोका गया। तो हम इसके एक दो हवाले बताते हैं। एक वक्त ऐसा हुआ कि दो मालदार यहूदी, यानी वो आए सरकार के सामने और वो यहूदी थे। उन्होंने चाहा कि वो ईमान लेकर आए, लेकिन उनको तकलीफ किस चीज़ से थी कि जब वो आकर नबी की बारगाह में आए तो नबी की बारगाह में उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत मिस्कीन, गरीब,
ایسے لوگ بیٹھے ہیں. یعنی وہ اپنی شان کے خلاف اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بیچ میں بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے. کیونکہ اس دور میں ایسا تھا کہ غلام لوگ جو ہوتے تھے، یعنی غریب جو ہوتے تھے، تو پیسے والے لوگ ان کو بہت دور رکھتے تھے اپنے آپ سے، اور ان کی شان و شوکت تھی، مالدار ہے، بہت پیسے والے ہیں، تو وہ لوگ ان کے درمیان تو بیٹھیں گے نہیں. اب وہاں ماحول کیسا ہو جائے گا کہ ایک پیسے والے، کیونکہ اسلام میں تو کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، غریب امیر سب ایک ساتھ بیٹھیں گے. عبادت کا ذریعہ بھی آپ نے دیکھا، نماز کے اندر کوئی بھی کیسا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ایک بادشاہ بھی ہوگا تو بھی اسی لائن میں کھڑا ہوگا. تو اسلام کا ہمارا قانون تو یہی ہے کہ ساتھ میں رہے. تو ہمارے نبی بیٹھے ہیں اور سامنے ان کے جو بھی بیٹھے ہیں اس میں غریب بھی بیٹھے ہیں، امیر بھی بیٹھے ہیں، لیکن فقراء بہت سارے بیٹھے ہیں. دیکھیے کہ بھئی یا تو سب ایسے مسکین اور فقراء اور بہت زیادہ غریب لوگ، پھٹے حال کپڑے ویسے بیٹھے ہیں. اب اس میں ہم مالدار لوگ بیٹھیں گے تو ہماری تو توقیر عزت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، ہماری عزت کم ہو جائے گی. تو انہوں نے جب ان کی بارگاہ میں دیکھا، سرکار کی بارگاہ میں، تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان تو لانا چاہتے ہیں لیکن شرط ہے. اب وہ 2 شخص جو ان کا نام بتا دیتے ہیں، اقرا بن حابس اور عینہ بن حسن. یہ 2 لوگ جو ہے سرکار کی بارگاہ میں